Hello students, welcome back to my channel. This is the 23rd mock test in this series, and in this mock test we are going to cover crop nutrition, essential nutrients, their function and deficiency symptoms in plants. Before going to start the mock test, I would like to tell you that if you are watching this mock test, this is kind of discussion type mock test, so you watch till the end. Okay, you just do not skip the mock test, you just do not skip the questions and answers, right? Because what I am doing here, I am giving you the question and I am giving you the time to note down the right answer, and then I am giving you the answer and I am discussing the question, what should be the probable question and why should be the that answer will be right. And related to that question also I am discussing so many questions. So whenever you are watching till the end and without skipping the questions, then only you can grab a lot of knowledge, grab a lot of questions, right, related to those questions which are asked in this mock test. Okay, and another thing is that in our Telegram channel you can search it एग्रीकल्चर Q&A. ओके, ये टेलीग्राम चैनल में हम लोग अभी रोज जो है रात को 8 PM में हम लोग क्विज लॉन्च कर रहे हैं, राइट? डेली बेसिस में आपको क्विज मिल जाएगा, 20-30 क्वेश्चन वट एवर इट मे बी, एंड with this quiz you can assess your knowledge, you can assess your score, and you can improve yourself, right? So let's start with the first question. Who among the following proposed the law of essentiality for plant nutrients? Who among the following proposed the law of essentiality for plant nutrients? Options are Liebig, Nicholas, Arnold Stout, Mengel and Kirkby. The right answer is Arnon and Stout. Okay, what is essentiality law and why essentiality law? Because there are around more than 90 elements found in plant. Okay, plant में जो है more than 90 elements are there, but which elements are essential? So essentiality principle क्या कहता है? Essentiality principle के हिसाब से कौन सी न्यूट्रिएंट एसेंशियल होना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किए थे आर्नन एंड स्टाउट ने. क्राइटेरिया क्या है? Number 1, without that nutrient plant cannot complete its vegetative or reproductive life. Then second thing is that particular nutrient can be fulfilled with only supplying that particular nutrient. Okay, अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन सप्लाई करने से ही वो फुलफिल होगा, वो डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं हम. दूसरा कोई एलिमेंट मतलब न्यूट्रिएंट अगर सप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तीसरा जो एसेंशियलिटी प्रिंसिपल है, दैट एलिमेंट इज शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट. मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में, मेटाबॉलिज्म यानी डिफरेंट बायोसिंथेसिस में वो जो न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए. तो ये तीनों जो प्रिंसिपल है ये लॉ ऑफ एसेंशियलिटी कहलाता है और इसको प्रपोज किए थे आर्नन एंड स्टाउट ने. एंड इसमें से जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि इसका एब्सेंस में प्लांट अपना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो है यूनिवर्सल लॉ. ओके, बाकी दोनों में कुछ डेविएशन एक्सेप्शंस पाया गया है, लेकिन फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसमें वो है यूनिवर्सली ट्रू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not an essential mineral nutrient of plant? Which among the following is not an essential mineral nutrient of plant? Options are carbon, nitrogen, oxygen, both A and C. द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी. ओके, ये तीनों जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये तीनों जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनको बोलते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट. नाइट्रोजन को बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट. ओके, सो व्हाई बोथ ए एंड सी दीज आर नॉट मिनरल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट? बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है इसको कहाँ से ये अपटेक होता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस से. ओके, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन या फिर H2O हाइड्रोलिसिस होकर ऑक्सीजन मिलता है प्लांट को, या फिर कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही फॉर्म में अपटेक होता है. लेकिन नाइट्रोजन जो है ये सॉइल से ही अपटेक होता है, सॉइल मिनरल से डिफरेंट मिनरलाइजेशन प्रोसेस होकर ये अपटेक होता है. तो इसलिए नाइट्रोजन बाकी जितने भी CH एंड O इसको छोड़ के बाकी जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट. ओके, तो टोटल कितना एसेंशियल न्यूट्रिएंट है? 17. उसमें से बेसिक जो है, जो कि नॉन मिनरल है, CHO एंड मिनरल न्यूट्रिएंट है 14. टोटल नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अगर पूछा जाएगा जो कि एसेंशियल है तो आपका आंसर होना चाहिए 14, ना कि 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a functional element? Which among the following is a functional element? Options are carbon, nitrogen, sodium, all of the above.
द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सोडियम राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन एसेंशियल न्यूट्रेंट है और सोडियम जो है फंक्शनल न्यूट्रेंट है। लेकिन फंक्शनल न्यूट्रेंट किसने कॉइन किए थे? निकोलस ने, निकोलस। ओके, इन्होंने फंक्शनल न्यूट्रेंट कॉइन किए थे। वो क्या प्रपोज किए थे कि एलोंग विथ एसेंशियल न्यूट्रेंट और कुछ भी न्यूट्रेंट है जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, ओके, कोबाल्ट, ये कुछ जो न्यूट्रेंट है ये प्लांट को डिफरेंट एंगल से वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्लांट का ग्रोथ, यील्ड, उसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें हेल्प करता है। तो इनको बोलते हैं फंक्शनल एलिमेंट। ये जितना भी है टोटल 21 नंबर ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स आर देयर, 17 एसेंशियल एंड 4 जो है बेनिफिशियल या फिर ओके, तो टोटल बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following essential nutrient is found highest percentage in plant tissue? इनमें से कौन सी जो essential nutrient है उसका concentration plant tissue में highest है? ऑप्शन आर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। द राइट आंसर इज कार्बन। ओके, जो प्लांट टिश्यू है उसमें कार्बन जो है अराउंड 45% कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है 45% अराउंड, हाइड्रोजन रहता है अराउंड 6%, देन नाइट्रोजन ये 6% अराउंड रहता है। नाइट्रोजन और पोटेशियम ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो ये जनरली 1 to 3% और 4% रहता है डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स वी आर कंसिडरिंग। ओके, सपोज लेग्यूम लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रहता है नाइट्रोजन कंटेंट, लाइक 3 to 5% रहता है, लेकिन सीरियल अगर लेते हैं तो फिर उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a secondary mineral nutrient? Which among the following is a secondary mineral nutrient? Options are nitrogen, phosphorus, sulfur, zinc. The right answer is sulfur. There are two kinds of, like, one is major or macro, another is micronutrient. Okay, so major में भी primary और secondary रहता है। प्राइमरी में फिर आ गया NPK, सेकेंडरी में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो इसमें से राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर जो है एक सेकेंडरी मिनरल न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following group of nutrients help in charge balance in plant? Which among the following group of nutrients help in charge balance in plants? Options are carbon, hydrogen, oxygen, potassium, calcium, magnesium, nitrogen, sulfur, phosphorus, iron, manganese, zinc, copper. द राइट आंसर इज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये प्लांट में चार्ज बैलेंस करते हैं। इसमें पोटेशियम K+, Ca2+, देन मैग्नीशियम 2+, ये कैटायंस है, तो ये चार्ज बैलेंस करते हैं प्लांट में। ये तीनों जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बेसिक एलिमेंट और इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ज़्यादा पाया जाता है। देन NSP, ये एनर्जी बैलेंस, सपोज ATP फॉर्मेशन या फिर एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। देन आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, ये काइंड ऑफ कोफैक्टर, देन एंजाइम एक्टिवेशन इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following nutrient is called ultra micronutrient? इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है? ऑप्शन आर आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। द राइट आंसर इज मोलिब्डेनम। इसको क्यों अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है? क्योंकि इसका जो प्लांट में जो कंटेंट है वो बहुत लेस है। इसको PPB पार्ट्स पर बिलियन में काउंट किया जाता है, मतलब इसका जो कंटेंट है प्लांट टिश्यू में वो बहुत लेस है, बहुत माइन्यूट है, ओके, देन अदर्स। सो इसको बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु हैव क्लासिफाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन? इनमें से कौन सी साइंटिस्ट है जो प्लांट न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किए थे बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को लेके? ऑप्शन आर मेंजल एंड किर्कबी, आर्नन एंड स्टाउट, लेविस एंड जिल्बर्ट, देन निकोलस। द राइट आंसर इज मेंजल एंड किर्कबी। ये जो क्लासीफाई किए थे बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से क्लासीफाई किए थे। आर्नन एंड स्टाउट एसेंशियलिटी प्रिंसिपल दिए थे। लेविस एंड जिल्बर्ट जो है रोथामस्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, रोथामस्टेड रिसर्च स्टेशन इन इंग्लैंड, ये एस्टेब्लिश किए थे लेविस एंड जिल्बर्ट ने। निकोलस जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको प्रपोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following nutrient is the least mobile nutrient in plant? Which among the following nutrient is the least mobile nutrient in plant? Options are nitrogen, phosphorus, molybdenum, calcium. The right answer is calcium.
ओके। सो प्लांट में मोबिलिटी को लेके और डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट रहता है, जैसे फास्ट मोबिलिटी, ओके, हाईली मोबाइल और हाईली मोबाइल। ओके, इसमें कौन से आता है, एन पी के, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सारे जो है हाईली मोबाइल ग्रुप में आते हैं। और देन लेस मोबाइल में कौन सी आता है, जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, सल्फर, मैंगनीज। ओके, ये है लेस मोबाइल। देन इमोबाइल प्लांट में तो इसमें आ जाते हैं कैल्शियम, बोरोन। सो इसको याद रखना कि एक प्लांट है, सपोज इसको कैसे याद रखोगे, जब भी कोई पूछेगा आप उसको आंसर कर सकते हो। जो मोबाइल न्यूट्रिएंट है, ओके, वो तुरंत प्लांट के टिप में चले जाते हैं क्योंकि वो मोबाइल है, हाईली मोबाइल है। और जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है वो लोअर लिप में रह जाते हैं, अपर लिप में नहीं जा सकते। तो जो लोअर लिप में रह जाते हैं जो न्यूट्रिएंट, जो कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, उनका डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिखाई देगा, टिप में। ओके, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है या फिर टिप में, जो बॉड है या फिर टॉप लिप्स है जो कि यंग लिप्स है, वहाँ पे दिखाई देगा जो कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम। और जो मोबाइल न्यूट्रिएंट है वो डायरेक्टली चले जाते हैं अपर पोर्शन में या फिर जो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे चले जाते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। तो उनका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो ओल्डर लिप में, जो कि लोअर लिप में दिखाई देगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट जैसे एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इनका डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिखाई देगा, ये डायरेक्टली अपर पोर्शन में चले जाते हैं, इसलिए इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम होगा वो लोअर लिप में दिखाई देगा। जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, जो कि जैसे कैल्शियम, बोरोन हो गया, ये इमोबाइल है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन हायर इन लोअर लिप। सो इनका जो डेफिशिएंसी सिम्टम होगा वो टिप पोर्शन में या फिर अपर लिप्स में ज़्यादातर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following cation is highly mobile in soil? Which among the following cation is highly mobile in soil? Potassium, magnesium, zinc, manganese. The right answer is manganese. जनरली जो सॉयल है वहाँ पे का जो माइसली है वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस रहता है। तो नेगेटिव चार्जेस रहने से क्या होगा, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे क्या होगा, ये नेगेटिव क्ले माइसिल में ये अट्रैक्ट होगा, तो वहाँ पे मोबिलिटी जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, राइट। तो जितने भी कैटायंस है वो स्लो मोबिलिटी रहता है सॉइल में, इनका मोबिलिटी लो रहता है। लेकिन मैंगनीज एक कैटायन है जिसका मोबिलिटी बहुत हाई रहता है, इसको ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आनायन इज लीस्ट मोबाइल इन सॉइल? Which among the following anion is least mobile in soil? Options are chlorine, H2PO4 minus, nitrate NO3 minus, sulfate SO4 2 minus. The right answer is H2PO4 minus. Why? Because okay, again that soil myceli, okay, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा, तो फिर जितने आनायन हो गए, जैसे क्लोराइड हो गया, NO3 माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है और क्ले माइसली का माइनस है, तो ये रिपेल होगा। तो यहाँ पे मोबिलिटी जो है इनका हाई रहेगा सॉइल में। क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, इनका मोबिलिटी हाई रहेगा, इसीलिए ये लीचिंग प्रोन है, नाइट्रेट जैसे लीचिंग प्रोन हो गया। H2PO4 केस में लेकिन ये क्या होता है, क्ले माइसली में जो रहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे सलाइन सॉइल में, या फिर एल्यूमिनियम, आयरन जैसे एसिडिक सॉइल में, तो इनके साथ ये बाइंड हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल क्ले मिनरल में, तो इनका मोबिलिटी जो है लीस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, phosphorus and potassium in plants are mostly absorbed by, phosphorus and potassium in plants are mostly absorbed by, options are mass flow, root interception, diffusion, transpiration pool. द राइट आंसर इज डिफ्यूजन। ओके, सो 3 टाइप का जो है प्लांट ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, वन इज मास फ्लो, वन इज रूट इंटरसेप्शन, अनदर इज डिफ्यूजन। सो जनरली जो है पोटेशियम एंड फॉस्फोरस जो है ये अपटेक होता है थ्रू डिफ्यूजन। ओके, मास फ्लो कैसे होता है, मास फ्लो में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पूल में जो वाटर अपटेक होता है रूट से लेके पूरा एकदम जाइलेम होके जो अपटेक होता है ट्रांसपिरेशन पूल में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो ग्रेडियंट है उसमें, तो उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट आते हैं उनको बोलते हैं मास फ्लो। देन रूट इंटरसेप्शन में क्या होता है, जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है उनके पास रूट जाता है और रूट से कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही वो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, तो उसको बोलते हैं रूट इंटरसेप्शन। देन सो पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इज जनरली अपटेकन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, mineral nutrient that is absorbed by plant both in cationic and anionic form, which among the following mineral nutrient that is uptaken by plant both in cationic and anionic form? Options are nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur. The right answer is nitrogen. नाइट्रोजन जो है
NH4 प्लस जो है कैटायनिक फॉर्म में एंड NO3 माइनस जो अनायनिक फॉर्म में ये ऑप्टेक होता है। ओके, देन फॉस्फोरस जो है ये अनायनिक फॉर्म में ऑप्टेक होता है H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस ये फॉर्म में ऑप्टेक होता है। देन पोटेशियम कैटायनिक फॉर्म में K प्लस, सल्फर अनायनिक फॉर्म में SO4 2 माइनस फॉर्म में ऑप्टेक होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो बोथ अनायनिक एंड कैटायनिक फॉर्म में ऑप्टेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mineral nutrient that doesn't take part in biomolecular composition in plant, which among the following mineral nutrient that doesn't take part in biomolecular composition in plant? Options are nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur. द राइट आंसर इज पोटेशियम। जितने भी बाकी सारे जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं अंडर प्लांट टिश्यू और प्लांट में। ओके, लेकिन पोटेशियम जो है वो K प्लस फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में ही प्लांट में रहता है। वो कोई भी बायोमोलिकुलर प्रोटीन हो गया, जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कोई भी बायोमोलिकुल्स के साथ वो कंबाइन होकर नहीं रहता है, ये फ्री फॉर्म में K प्लस फॉर्म में रहता है। इसीलिए जितना भी लग्जरी कंजप्शन जो होता है वो पोटेशियम केस में ज़्यादातर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका जितना भी कंजप्शन होने से भी वो टॉक्सिक सिम्टम ज़्यादातर नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? इनमें से कौन सी अमाइनो एसिड जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है? ऑप्शन आर लाइसिन, सिस्टेन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन। द राइट आंसर इज सिस्टेन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है? मेथियोनाइन, सिस्टेन, सिस्टीन। इसको याद रख लेना, एग्जाम में आता है। मेथियोनाइन, सिस्टेन एंड सिस्टीन ये है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। प्रोलिन जो अमीनो एसिड है ये जनरली स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रेट होता है, जैसे कि FBA जैसे हार्मोन सिक्रेशन होता है स्ट्रेस कंडीशन में, वैसे प्रोलिन जो है अमीनो एसिड ये सिक्रेट होता है स्ट्रेस कंडीशन में। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन दे आर डेफिशिएंट इन सीरियल्स। ओके, ये जो अमीनो एसिड है ये सीरियल में डेफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट दैट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राउट, लॉजिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राउट रेजिस्टेंस, लॉजिंग रेजिस्टेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस में? ऑप्शन सर पोटेशियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयरन। द राइट आंसर इज पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट दैट हैज मेजर रोल इन पोलन जर्मिनेशन एंड शुगर ट्रांसलोकेशन। इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट हैज मेजर रोल इन शुगर ट्रांसलोकेशन एंड पोलन जर्मिनेशन? ऑप्शन सर मोलिब्डेनम, बोरॉन, सल्फर, जिंक। द राइट आंसर इज बोरॉन। बोरॉन जो है शुगर ट्रांसलोकेशन में और पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट इज मॉडरेटली मोबाइल इन प्लांट? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सर बोरॉन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, जिंक। द राइट आंसर इज जिंक। बोरॉन एंड कैल्शियम दे आर इमोबाइल इन प्लांट, इमोबाइल। ओके, इनका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो टिप में, बॉड रीजन में या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन में दिखाई देता है। मोलिब्डेनम जो है हाईली मोबाइल इन प्लांट। ओके, जिंक जो है ये मॉडरेटली मोबाइल इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency of which among the following mineral nutrient causes interveinal chlorosis in older leaves? Deficiency of which among the following mineral nutrient causes interveinal chlorosis in older leaves? Options are magnesium, manganese, iron, sulfur. The right answer is magnesium. Magnesium is responsible for interveinal chlorosis। मतलब interveinal chlorosis मतलब ये सपोज लीफ हो गया। ओके, भेन ग्रीन रहेगा। ओके, जो भेन है, भेन मतलब ये पोर्शन है भेन, ये ग्रीन रहेगा, और इंटरवेनल मतलब ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो ये क्लोरोसिस यहाँ पे होगा। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग टाइप का हो जाएगा। ओके, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो ओल्डर लीफ में इंटरवेनल क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। देन यंगर लीफ में इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है मैंगनीज एंड आयरन डेफिशिएंसी। सल्फर जनरली क्लोरोसिस करता है इन न्यूअर लीव्स और यंगर लीव्स। ओके, एंड नाइट्रोजन जो है क्लोरोसिस करता है इन ओल्डर लीव्स। ये है कंप्लीट क्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोथामस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, मैं आपको बता चुका हूँ। रोथामस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑप्शंस आर आर्नन एंड स्टाउट, मेंजेल एंड किर्कबी, लेविश एंड जिल्बर्ट, जेवी लेविग।
The right answer is Lewis and Gilbert. Lewis and Gilbert in 1843 they have established Rothamsted experiment station at England. लेबिक जो है इनको बोलते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री. देन आर्नन एंड स्टाउट लॉ ऑफ एसेंशियलिटी प्रपोज किए थे. देन मेंजल एंड किर्कबी क्लासीफाई किए थे प्लांट न्यूट्रिएंट को बेस्ड ऑन बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The essentiality of boron was discovered by. The essentiality of boron was discovered by. Options are J. Sachs, G. K. Rutherford, Annan and Stout, K. Warrington. द राइट आंसर इज के वारिंगटन. इन्होंने बोरॉन का एसेंशियलिटी प्रपोज किए थे. आर्नन एंड स्टाउट जो है मॉलिब्डेनम का एसेंशियलिटी डिस्कवर किए थे. रदरफोर्ड नाइट्रोजन का एसेंशियलिटी डिस्कवर किए थे. जे सैक्स कार्बन एंड हाइड्रोजन का एसेंशियलिटी डिस्कवर किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द मिनरल न्यूट्रिएंट एंड इट्स प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ ऑप्टिक. इनमें से कौन सी ऑड है जो कि फॉल्स है विथ रिस्पेक्ट टू मिनरल न्यूट्रिएंट एंड इट्स फॉर्म ऑफ ऑप्टिक. ऑप्शंस आर नाइट्रोजन इज इक्वल टू अमोनियम एंड नाइट्रेट. नाइट्रोजन जो है अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म में ऑप्टेक होता है. क्लोरीन क्लोराइड फॉर्म में ऑप्टेक होता है Cl माइनस फॉर्म में. सल्फर SO4 2 माइनस फॉर्म में ऑप्टेक होता है. या फिर मॉलिब्डेनम MO2 प्लस फॉर्म में ऑप्टेक होता है. इनमें से कौन सी रॉन्ग है? राइट आंसर इज मॉलिब्डेनम MO2 प्लस. ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. इसका ऑप्टिक फॉर्म है MOO4 2 माइनस. ओके, ये इस फॉर्म में मॉलिब्डेनम जो है MOO4 2 माइनस फॉर्म में ऑप्टिक होता है. और सल्फर जो है SO4 2 माइनस फॉर्म में ऑप्टिक होता है. क्लोरीन Cl माइनस फॉर्म में ऑप्टिक होता है. नाइट्रोजन अमोनियम एंड नाइट्रेट फॉर्म में ऑप्टिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय कैटायोनिक फॉर्म. इनमें से कौन सी मिनरल न्यूट्रिएंट जो है कैटायोनिक फॉर्म में ऑप्टिक नहीं होता है? ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन. द राइट आंसर हियर विल बी बोथ फॉस्फोरस एंड सल्फर. बिकॉज सल्फर जो है अपटेक होता है SO4 2 माइनस फॉर्म में. फॉस्फोरस भी अपटेक होता है H2PO4 माइनस फॉर्म में. ओके, सो ये दोनों अनायोनिक फॉर्म में अपटेक होते हैं. एंड नाइट्रोजन जो है बोथ अनायोनिक एंड कैटायोनिक फॉर्म में अपटेक होता है NH4 प्लस. देन आयरन जो है Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस फॉर्म में अपटेक होता है. तो ये दोनों होगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following mineral nutrient is not a component of chlorophyll molecule? Which among the following mineral nutrient is not a component of chlorophyll molecule? Options are iron, nitrogen, magnesium, carbon. The right answer is iron. Okay, chlorophyll का जो जनरल फॉर्मूला है वो है C55 क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg. ओके, ये क्लोरोफिल का जो है फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg. ओके, तो मैग्नीशियम एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का जो कि इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है. नाइट्रोजन भी रहता है N4, कार्बन भी रहता है C55, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, आयरन नहीं रहता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following instrument is used to estimate the micronutrient content in plant tissue? इनमें से कौन सी इंस्ट्रूमेंट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एस्टिमेट करने के लिए प्लांट टिश्यू में यूज होता है? ऑप्शंस आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, ICP, जेलडाल. द राइट आंसर इज ICP. ICP क्या होता है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. ओके, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डायरेक्टली 22 न्यूट्रिएंट का एक साथ हम एस्टिमेट कर सकते हैं. जेलडाल में नाइट्रोजन एस्टिमेशन होता है. फ्लेम फोटोमीटर में सोडियम एंड पोटेशियम जो कैटायन होता है वो एस्टिमेट होता है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फॉस्फोरस एस्टिमेट करते हैं. ओके, सो ICP जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के लिए वहाँ पे सुइटेबल है, उसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. और माइक्रोन्यूट्रिएंट एस्टिमेट के लिए AAS भी यूज होता है, AAS. ओके, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको भी याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is used as an indicator plant for phosphorus deficient soil? Which among the following is used as an indicator plant for phosphorus deficient soil? Options are cauliflower, rapeseed, potato, sugar beet.
द राइट आंसर इज रेफसिड। ओके, इंडिकेटर प्लांट क्या होता है, वो जनरली सेंसिटिव होता है। अगर डेफिशिएंसी हुआ वो प्लांट में जल्दी असर पड़ेगा। सपोज कोई भी प्लांट है जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट के लिए यूज होता है, तो अगर वो सॉइल में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुआ तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम उसी प्लांट में ही दिखाई देगा। तो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम के लिए जो है यूज करते हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारे प्लांट्स। रेफसीड फॉस्फोरस, ओके, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी के लिए रेफसीड प्लांट यूज करते हैं। पोटेशियम डेफिशिएंसी के लिए पोटैटो, देन सोडियम डेफिशिएंसी के लिए शुगर बीट, जो कि इंडिकेटर प्लांट हिसाब से यूज होता है। इंडिकेटर प्लांट याद रखना, इंडिकेटर प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following nutrient deficiency causes pop pod disease in groundnut? Which among the following nutrient deficiency causes pop pod disease in groundnut? Options are molybdenum, manganese, calcium, magnesium. द राइट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम डेफिशिएंसी होने से पॉप पॉड डिजीज इन ग्राउंडनट होता है। इसमें क्या होता है, जो पॉड होता है ये ग्रेन से फील नहीं होता है। ग्रेन जनरली जो है अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कॉजेज क्रिंकल लीफ डिजीज इन कॉटन? इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट जो है टॉक्सिक होने से क्रिंकल लीफ डिजीज इन कॉटन दिखाई देता है? ऑप्शन आर मैंगनीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक। द राइट आंसर इज मैंगनीज। मैंगनीज टॉक्सिसिटी होने से कॉटन में क्रिंकल लीफ डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोच ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन दैट इज यूज्ड इन क्रॉप लॉगिंग मेथड। द अप्रोच ऑफ क्रॉप न्यूट्रिशन दैट इज यूज्ड इन क्रॉप लॉगिंग मेथड। ऑप्शंस आर ड्रिस, CNC, आइसोटोप डाइल्यूशन, सॉइल एनालिसिस। द राइट आंसर इज CNC। CNC क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन अप्रोच। ओके, ड्रिस क्या होता है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन सिस्टम अप्रोच। ओके, तो क्रॉप लॉगिंग में क्या होता है, क्रॉप लॉगिंग में हम लोग प्लांट का डिफरेंट ग्रोथ स्टेज में उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है एस्टिमेट किया जाता है। तो अगर वो न्यूट्रिएंट कंटेंट कम रहता है देन क्रिटिकल, देन उसको सप्लीमेंट किया जाता है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। तो बेस्ड ऑन क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, luxury consumption of which among the following nutrient is mostly observed? We have already discussed luxury consumption of which among the following nutrient is mostly observed. Options are nitrogen, phosphorus, potassium, iron. The right answer is potassium. Why luxury consumption occurs in potassium? Because potassium is present in plant in K plus form and is always present in ionic form inside plant. It do not form complexes with different biomolecules or any tissue, okay, in plant. So इसका जो अगर इसका ज़्यादा भी कंसेंट्रेशन रहा प्लांट में तब भी कोई टॉक्सिसिटी सिम्टम इसमें शो नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका जो है लग्जरी कंजम्पशन होता है पोटेशियम का। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन एंड देयर डेफिशिएंसी एंड रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगता है तो आप काइंडली इसको शेयर कीजिए अपना जो भी फ्रेंड्स या जूनियर्स है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा हमारा अगर चैनल का ग्रोथ होगा तो। एंड आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कीजिए, एग्रीकल्चर, उसका नाम है एग्रीकल्चर Q&A, उसमें ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे भी डेली जो है क्विज मिलता रहेगा, तो आपका जो है नॉलेज थोरो होता रहेगा या फिर आप खुद को असेस कर सकते हो उसके माध्यम से, क्विज के माध्यम से। So see you in the next mock test. Till then, bye bye.